ہم سب کے اس طرح اکٹھے ہونے کے لیے بیشک خدا کا کلام کسی کے انسانی عقل سے بالا تر ہے. یہ وہی کلمات ہیں جو ہم ہر سال سنتے ہیں، اس کی تشریحات ہوتی ہیں، لیکن کیسی خوبصورت بات ہے کہ ہر سال ہم کوئی نئی چیز اس سے نکالتے ہیں. خدا ان کا شکر ہو. اس کلمے کو تیار کرتے ہوئے بہت سے سوال میرے ذہن میں آئے اور کچھ لوگوں کے سوالات بھی میں نے دیکھے جن کے جوابات اپنی ناقص عقل سے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی میں نے، اور وہی سوالات میں آج ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ. خداوند یسوع مسیح یہودی اوقات کے مطابق 9 بجے صلیب پر موئے گئے. 9 سے 12 بجے تک انہوں نے 3 کلمات کہے. وہ تینوں کلمات دوسروں کے بارے میں تھے، لیکن 12 بجے ایک بہت ہی سپر نیچرل معکوف الفطرت بات یہ ہوئی کہ تاریکی چھا گئی. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ تاریکی کیا تھی، یہ تاریکی کیوں چھا گئی. اور 12 بجے جو کلمہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، بہت بے بسی کا عالم ہے. اور ہم میں سے بہت ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ خدا اس طرح کا سوال کرے گا، جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، جس کے ہاتھ میں، جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، وہ کیوں اتنا بے بس ہے. سب سے پہلے ہم تاریکی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ تاریکی کیا تھی. اس تاریکی کا ذکر ہم کلام مقدس میں اس کے علاوہ بھی دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت تیز آندھی تھی، یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت گہرے بادل تھے جس کی وجہ سے تاریکی چھا گئی. میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا اس چیز کی. تاریکی اس وقت دوپہر کے 12 بجے تھے اور سورج اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا. اب جہاں تک آندھی اور بادلوں کا تعلق ہے، وہ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھے. لوکا کی انجیل میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ وہ یہاں تاریکی کا ورڈ یوز کرتا ہے ایکلیپو، یعنی وہ کہتا ہے کہ سورج کی تاریکی جاتی رہی، سورج کی روشنی جاتی رہی اور تاریکی چھا گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورج گرہن تھا. سورج گرہن کے تعلق سے میں ایک بات کہوں گا کہ یہ عید فصح کا دن تھا، اور ہر مہینے کا آغاز جو ہے وہ چاند کی پہلی تاریخ سے ہوتا تھا، اور اس وقت عید فصح جو ہے وہ مہینے کے درمیان میں تھی. یعنی چاند کی پوری عمر پوری ہو چکی تھی اور پورا چاند تھا اس وقت. سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو چاند اور سورج کے درمیان زمین تھی، اور اس وقت سورج گرہن کا کوئی وجہ یہاں نظر نہیں آتی. تو یہ البتہ سورج گرہن نہیں تھا. بہت سے حوالہ جات ہیں کلام مقدس میں. اگر ہم دیکھیں یشوع 10 باب 13 آیت، اعمال 2 باب، مکاشفہ 6 باب، جس میں لکھا گیا ہے کہ خدا جب عدالت کے لیے آئے گا تو سورج تاریک ہو جائے گا. اسی طرح دوسرا سلاطین، خروج، ان سب حوالہ جات میں تاریکی کا ذکر ہے، اور خدا کے اختیار میں ہے کہ وہ جب چاہے سورج کو تاریک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس وقت کو پیچھے بھی لے جاتا ہے. تو گویا میں اس بات سے متفق ہوں کہ یہ خدا کا قہر تھا. یہ تاریکی جو ہے اس کا مطلب خدا کا قہر تھا. یہ قہر کیوں تھا؟ یہ قہر گناہ کی سزا تھی. کون سے گناہ؟ یہ گناہ وہی ہیں جو آپ کے اور میرے گناہ ہیں، جو یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیے.
ये उन्हीं गुनाहों की सजा है, ये तारीकी खुदा का गजब है, खुदा की अदालत है। खुदा का गजब और खुदा की अदालत को हम इन हवाला जात से कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें यसाया 5 बाब 13 बाब, योएल 2 और 3 बाब, इन सब में मरकूम है कि खुदा अब गुनाह की अदालत करता है और गुनाह की सजा मौत है। इसके बाद बहुत से सवालात जो हमारे जहनों में आए और दूसरे लोग भी ये सवालात करते हैं कि क्यों गुनाह और किस तरह से ये सजा मतलब कि यीशु मसीह पर नाजिल की गई। जब खुदा के अजाब का प्याला उंडेला जा चुका था और सजा शुरू हो गई थी, तो सजा का एक वक्त है जो कि मौत तक खत्म होना था। और उस वक्त के दौरान यीशु मसीह बड़ी बेबसी के आलम में ये कलमा कहते हैं जो कि है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप सोच सकते हैं कि कई घंटों से खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हैं, उनके हाथों में उनके पैरों में कील जड़े हुए हैं, सर पे कांटों का ताज है। अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो हम समझ सकते हैं कि किस तकलीफ में उन्होंने इस कलमात को कहा। जब एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैंने इनाम साहब को बीच में कट किया है। हम यही कलमा 5 मिनट बाद दोबारा सुनेंगे। मैं इनाम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि दोबारा वो बयान करें। हम 5 मिनट के लिए उठ के एक साइड पे हो जाएं और आप खड़े खड़े होकर दुआ मांगे। अगर हमारा खुदा पानियों को हुक्म दे सकता है, हवाओं को रोक सकता है, तो आज इस आंधी को भी रोकेगा और हम सब ईमान के साथ खड़े होंगे। ये तंबू जो है वो फट गया कि अगर वो राइट साइड पे बैठे, क्योंकि टेंट उस साइड से फटा है, तो ज्यादा लोग इस तरफ बैठे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हम शुरू करेंगे जहां से ब्रेक हुआ था सिलसिला। हम उस सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर है और सर पर कांटों का ताज है, हाथों और पैरों में कील जड़े हुए हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा आप मेडिकल के लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, इंसान अपने होशो हवास में नहीं रहता। और खुदावंद यीशु मसीह को ना सिर्फ फिजिकली चैलेंजेस थे बल्कि इमोशनली मजाक हो रहा है, लान तान किया जा रहा है, ताने मारे जा रहे हैं और वो जुबानों से निकला हुआ जहर इमोशनली जो है वो बहुत बुरे हालात में है। और इसी हालत में वो पुकारते हैं, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह ने इस तमाम सिलसिले में कभी किसी इंसान को, शागिर्द को, किसी को नहीं पुकारा, लेकिन खुदा पे अभी भी उनका इतना भरोसा है कि वो खुदा को पुकार रहे हैं और गिला कर रहे हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब इस बात पर बहुत से सवाल मेरे दिल में भी उठे और यकीनन आपके दिल में भी उठे होंगे। एक सवाल ये है कि क्या मसीह खुदा नहीं रहा था? तो इसका जवाब है नहीं, वो खुदा था। क्या मसीह खुदाई फितरत से जुदा हो गया था? तो इसका भी जवाब है नहीं। अगर उसकी खुदाई जाती रहे तो उसका वजूद ही खत्म हो जाए, ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या मसीह की रफाकत खुदा से खत्म हो गई थी? तो इसका जवाब है हाँ, यीशु मसीह की रफाकत खुदा से खत्म हो गई थी। और वो रफाकत क्यों खत्म हो गई थी? गुनाह की वजह से। और कौन से गुनाह? आपके और मेरे गुनाह, जो सब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए थे। और हमारा खुदा
इंसाफ का खुदा है। खुदा गुनाह की अदालत करता है और गुनाह की सजा मौत है, और वो खुदा का गजब और वो सजा उसी का सिलसिला शुरू हो चुका था और मौत पर जाकर वो खत्म होना था। इसमें कुछ हवाला जात मैं आपको कहूंगा। हबकूक पहला बाब 13 आयत में पाकीज़गी का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को ना देख सके। इसी तरह करंथियों में दूसरा करंथियों 5 बाब 21 आयत में इतनी खूबसूरत बात यूं मरकूम है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसको उसी ने हमारी खातिर गुनाह ठहराया। आप में से कुछ लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी और की सजा आपको मिली हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो चाहे वो सजा छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, मौत तक तो कोई नहीं पहुंचा होगा। छोटी सजा पे भी हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी। अब हमारे लिए इसमें एक सबक है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए इसलिए जान दी कि हम निजात पाएं, हमारे ऊपर जो गुनाहों का बोझ है वो खत्म हो। लेकिन अगर हम उन गुनाहों को रूटीन बनाकर दोबारा करते रहे तो हम जितनी दफा गुनाह करते हैं उतनी दफा यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाते हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की उस कुर्बानी को हमेशा याद रखें और सलीब अपने सामने रखें, और उस सलीब को देखते हुए जितने भी हमारे अमाल हैं उनको हम करें, ताकि हमें याद रहे कि हमारे यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर जान दी है, और उस कुर्बानी को हमेशा याद रखें।